بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، ہمارا یہ فقہ النکاح کا درس پچھلے ہفتے ہمارا جو پڑاؤ تھا وہ یہ تھا کہ عورت کا انتخاب کرتے ہوئے جو عام طریقے سے سماج میں چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور جن چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ نکاح کے لیے پیغام دیتے ہیں، جس کا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا، وہ یہ ہے کہ عورت کا مال دیکھ کر کے، عورت کا حسب نسب دیکھ کر کے، اور عورت کا حسن و جمال دیکھ کر کے، یا اس طرح سے عورت کی دینداری دیکھ کر کے۔ ایک حدیث تھی جس کا ذکر پہلے آپ کے سامنے آ چکا تھا، اور اسی حدیث کی شرح ہم نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو صرف اس حدیث کے ایک ٹکڑے، یعنی صرف ایک پوائنٹ جو ہے حدیث کا، اور وہ پوائنٹ تھا مال جو ہے، اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور ہرگز آپ میری باتوں سے یہ مطلب مت نکالیے گا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مال دیکھ کر کے عورتوں سے شادی کرنا چاہیے، میں یہ چیز میں نے ذکر نہیں کی تھی، اور یہ میرا مقصد نہیں تھا، بلکہ میں نے جو باتیں پچھلے درس میں ذکر کی ہیں ان کا خلاصہ یہ تھا کہ مال دیکھ کر کے بھی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے، دوسری اور خوبیاں ساتھ میں ہیں اور ساتھ میں مال بھی ہے۔ تو کسی عورت کو صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس مال ہے، یا یہ کہ وہ کماتی ہے، اس کے پاس جاب ہے، یا جو ہے اپنے ماں باپ سے اس کو وراثت میں بہت مال ملا ہوا ہے، تو صرف مالداری کی وجہ سے اسے ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اصل مسئلہ یہ تھا، جیسا ہمیں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور بعض خطبہ اور خطیبوں نے جو ہے اس طرح کی باتیں جو ہے تقریروں میں بیان کی ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر مالدار ہے لڑکی تو پھر وہ کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتی، اور باقاعدہ اس سلسلے میں ایک ضعیف حدیث، بہت ہی ضعیف حدیث جو میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر وہ مالدار ہے تو اس کی وجہ سے اسے وہ جو ہے مال اسے برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا، یعنی یہ اس کی جو ہے نافرمانی کا بڑا جو ہے سبب ہوگا کہ وہ عورت جو ہے نافرمانی کرے گی اور بات نہیں مانے گی اپنے شوہر کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اسی کی میں نے مثالیں پیش کی تھی آپ کے سامنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر کے ہمارے خود اپنے ملک کا جو ہے ہندوستان میں نواب صدیق حسن خان، ان کی جو ہے مثال، جو بڑے مشہور عالم گزرے ہوئے ہیں، جن کی شادی جو ہے بھوپال کی ملکہ سے ہوئی تھی، اور جو ہے وہ نواب خاندان کی، وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ مثالیں پیش کی تھی۔ یہ سب چیزیں ہیں، اسے جو ہے ذہن میں رکھیے گا۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اصل چیز اس میں عورت کی طبیعت کیا ہے، اس کا نیچر کیا ہے، اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ کتنی لڑکیاں ہیں جو بڑے غریب گھرانے سے تو ہوتی ہیں، لیکن جب کسی امیر گھرانے میں آتی ہیں شادی کر کے
तो उनके मिजाज ही नहीं मिलते, बाद में बिल्कुल जो है बदल जाती। तो ये असल नेचर होता है इंसान का। ऐसे ही कितनी जो है मालदार घर की लड़कियां हैं, शादी हुई उनकी, और अपने शौहरों की बड़ी फर्मा बरदार बन करके वो जिंदगी बसर करती हैं, अच्छी तबीयत की मालिक है, जो है नेचर अच्छा है, अच्छी तबीयत की मालिक है, तो बहुत अच्छे अंदाज से जिंदगी बसर हो रही है उनकी। हालांकि शौहर उनसे उस माल के लिहाज से उससे कमतर है, कम दर्जे का है, लेकिन फिर भी जिंदगी आप जा करके देखें तो बड़ी खुशगवार जिंदगी चलती है उनकी, बड़ी अच्छी जिंदगी। मैंने खुद अपनी जिंदगी में देखा है ये, जो इसलिए बता रहा हूँ आपको, मेरे सामने इसकी बहुत सी मिसालें हैं। तो सिर्फ इस वजह से कि माल है लड़की के पास, या लड़की कमा रही है, उसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये मतलब था मेरे कहने का। और ये मतलब नहीं था कि अब हरा लड़का जो है सिर्फ मालदार लड़कियों से ही शादी करे और गरीब लड़कियों को कोई पूछे ही नहीं, ये मतलब नहीं। यानी तरजीह देना जिसे कहते हैं ना, मेरा मकसद तरजीह देने का नहीं था, यानी आप उसको प्रायोरिटी दें जो है, वो मेरा मकसद नहीं था कहने का। मकसद सिर्फ ये था कि सिर्फ माल की वजह से ही किसी को रिजेक्ट कर दिया जाए। हालांकि लड़की अच्छी है, दीनदार है, सब कुछ है, लेकिन चूंकि माल है उसके पास, इसीलिए हम उससे शादी करना नहीं चाहते, हम भागते हैं उससे। हालांकि जो है शादी का पैगाम हमें आ रहा है, या जो है लड़की की ख्वाहिशें, लड़की के घर वालों की ख्वाहिशें कि वो चाहते हैं कि हमारे साथ शादी करे, तो हमें रिजेक्ट करने के लिए कोई जो है माल ये वजह नहीं है। जी हाँ। उसके बाद अब हदीस में और जो 3 चीजें हैं वो आज आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह। एक दूसरी बात क्या है उसमें कि ले हसबिहा, ली हसबिहा, हसब की वजह से। हसब अरबी जबान में ये लफ्ज यहाँ किसके लिए इस्तेमाल हुआ? यूं तो हदीस की शरह लिखने वालों ने कई माना इसके बयान किए हैं। मैं उनके जो अक़वाल है, उनके जो ओपिनियंस हैं, वो पहले आपके सामने पेश कर देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह सही बात क्या है हसब के बारे में वो पेश करेंगे। तो बाज़ लोगों ने इसका माना बयान करते हुए हसब का माना माल किया है। माल कि हसब से मुराद यहाँ पर माल है, माल, हसब। और इसकी वजह ये है कि इस तरह की बाद रिवायतें मौजूद हैं जिसमें ये जिक्र है कि इन्न अहसाब अहले दुनिया अल्लज़ीना यज़हबून इलैहि अलमाल, कि दुनिया वालों का हसब क्या है, जो आम तरीके से जिसका वो ख्याल करते हैं, जिसकी तरफ वो जाते हैं, वो माल है, माल। आपने एक लफ्ज सुना होगा, हमारे इस मुल्क में इस तरह के अल्फाज बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं मुहावरे में। जब माल होता है ना इंसान के पास, तो फिर उसकी हर कमी लोग भूल जाते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। माल है तो इस माल के पीछे हर कमी छुप जाती है। तो फिर ना खानदान देखते हैं ना कोई और चीज, मालदार है तो बस वो जो है, अब ये माल वही उसका हसब और नसब है, और यही माल उसकी पहचान है। असल हसब नसब क्या होता है? इंसान की वो पहचान होती है। तो दुनिया वालों की पहचान माल से होती है। वो हमेशा जो है किसी शख्स को देखते हैं, उसको तौलते हैं, तो किस चीज पर कि कितना माल है उसके पास। वो स्टेटस देखते हैं कि वो उसका स्टेटस जो है हमारे स्टेटस से मेल मेल खाता है या नहीं खाता। तो अगर माल उसके पास भी है तो ठीक है, इसका मतलब कि वो हसब है, और इसी को वो हसब समझते हैं। तो इस तरह की एक रिवायत है। ये रिवायत जो है मुस्नद अहमद की है, सुनन नसाई की है, और इमाम हाकिम रहमतुल्लाहि अलैह ने और इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही भी करार दिया है। ये जो है एक बहुत जो है मारूफ हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान करते हैं, मरफूअन इसको जिक्र किया गया है कि फ़इन्न अहसाब अहली दुनिया अल्लज़ीना यज़हबूना इलैहि अलमाल, कि दुनिया वालों का, जो दुनिया के पुजारी लोग होते हैं ना, जो दुनिया के पीछे भागते हैं, उनके यहाँ हसब भी क्या चीज होती है? वो माल ही होता है। और यह है एक हकीकत है, ये हम समाज में और मुआशरे में, सोसाइटी में ये चीज हम देखते भी हैं कि जो माल के पुजारी हैं वो
उनके नजदीक यही है कि सामने वाली पार्टी भी जिसके यहाँ हम रिश्ता करना चाहते हैं, चाहे लड़के का रिश्ता हो और लड़की ढूंढ रहे हो, या लड़की का रिश्ता है और लड़का ढूंढ रहे हैं, तो उनके यहाँ सबसे अहम चीज यही है कि वो मालदारी में उनका क्या मकाम है, उनका स्टेटस क्या है, हमारे बराबर के हैं या नहीं है। तो यही उनके यहाँ सबसे अहम चीज होती है जिसको वो देखते हैं। और इस माल के पीछे इंसान की हर कमी छुप जाती है। क्या है उसके अंदर, क्या आदतें हैं, क्या बुराइयां हैं, कुछ भी मतलब नहीं है। माल है तो बस ये काफी है। तो ये एक चीज है। और एक हदीस जो है हमने पेश की, उसकी रोशनी में बाज़ लोग ये कहते हैं कि हसब से मुराद यहाँ पर माल है। लेकिन जो है मैंने आपसे एक बात जिक्र की है कि इसके पहले दर्स में माल का जिक्र आपके सामने आ चुका है। चूंकि इस हदीस में अलग से माल का भी जिक्र मौजूद है, तो हसब का ये लफ्ज अगरचे की अरबी ज़बान में या जो है उस जमाने में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बाप और दादाओं की मालदारी पर भी इसका इतलाक होता रहा हो, ये लफ्ज बोला जाता रहा हो उस जमाने में, लेकिन यहाँ इस हदीस में हसब से मुराद माल नहीं हो सकता, क्योंकि माल का जिक्र चूंकि इसी हदीस में आया हुआ है। तो अभी एक ओपिनियन था, मैंने आपके सामने पेश कर दिया और ये भी बता दिया कि ये जो है इस हदीस के अंदर हसब के लफ्ज से माल मुराद हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जिक्र अलग से आया हुआ है। अब एक जो है दूसरी बात है, दूसरा ओपिनियन, दूसरी राय इस सिलसिले में कहते हैं कि हसब से मुराद अल मुराद बिल हसब हा हुना अल अफ़आलुल हसनतु, कि हसब से मुराद इस हदीस में अच्छे अफ़आल है। आज की जबान में आप जो है क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, गुड मैनर्स। गुड मैनर्स, अच्छा तौर तरीका, अच्छा रहन सहन, उर्दू में ये बेहतरीन उसकी ताबीर है। तो ये चीज भी देख करके शादी के लिए पैगाम दिया जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। एक चीज जो देखी जाती है वो क्या है, उसका हसब देखा जाता है। और हसब से मुराद क्या है, गुड मैनर। आप अच्छे अखलाक भी कह सकते हैं। अच्छे अखलाक, आला कदरें जो है, आला कदरें जो हम उर्दू में कहते हैं ना, वही गुड मैनर्स जो है इंग्लिश में आजकल जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो अच्छा कैरेक्टर जो कहते हैं, ये जो आप इंग्लिश में कहते हैं तो उसका जो है यानी गुड कैरेक्टर, तो ये अखलाक हसना अरबी ज़बान में उसे कहा जाता है। तो ये चीज देख करके कि इस शख्स के पास लड़की है, तो लड़की के अंदर आला कदरें हैं, छछूरी हरकतें नहीं है, बल्कि मुआशरे में, समाज में बड़ा रख रखाव है इनका, और जो है बड़ी अच्छी कदरें जो है हैं, गुड मैनर्स हैं इनके घर में। जो है इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है जो बड़ी इज्जत वाली लैंग्वेज होती है, सब लोग वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। बड़ा रख रखाव है, जो है बड़े मुहज्जब लोग हैं। आज के ज़माने में क्या कहा जाता है कि बड़े मुहज्जब लोग हैं, हम्बल जिसे आप कहते हैं जो है। और जो है एक और लफ्ज इंग्लिश में उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, पोलाइट जो है, पोलाइट। ये जो है चीज, तो ये सब की सब किस में आते हैं, हसब में जो है, हसब में। ये देख करके, वरना ऐसे भी लोग होते हैं कि घर वालों की जबान अच्छी नहीं होती, तो उसी समाज में लड़का पला बड़ा है या लड़की लड़की पली बड़ी है, तो उसकी भी जबान वैसी, उसकी लैंग्वेज भी वैसी होगी, उनका भी रहन सहन वैसे ही होगा। गाली गलौज की जबान जो है, और तू, और जो है तू तू वाली जबान जो होती है कि जो है तू, तुम ना, ये जो अल्फाज होते हैं ना, जो है जो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है तहजीब के खिलाफ हो। अगर इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह के अखलाक और इस तरह के कदरों पर जो है उसकी परवरिश हुई है, तो जाहिर सी बात है कि ससुराल में जब लड़की जाएगी तो इस तरह की लैंग्वेज यूज करेगी, तो खुद जो है आदमी अच्छा नहीं समझता है इस तरह की लैंग्वेज को और इस तरह की बातों को।
और इस तरह के अंदाज को, इस तरह के रख रखाव को, तो अलग अलग जगहों का अलग अलग रख रखाव होता है ना, तो इसीलिए लोग इसका भी ख्याल करते हैं। शादी के वक्त में जब रिश्ता करना होता है तो लड़के की जबान भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसी जबान जो कि मोहल्ले के जो गुंडा टाइप लोग होते हैं, औबाश किस्म के लोग होते हैं, जो समाज में अच्छी नजर से को नहीं देखा जाता है, उन लोगों की जो लैंग्वेज है, जो रख रखाव है, उस तरह के अगर लैंग्वेज लड़के की है, उसका रख रखाव है, तो फिर ऐसे लड़के को पसंद नहीं किया जाता, या ऐसी लड़की को भी पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि आगे चल करके औलाद पर भी इसका असर पड़ेगा। और जब कोई मामला होगा तो वो जब बातचीत करेगा तो उसी जबान में बातचीत करेगा, तो ये सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है। ये तो ये एक हसब की बात हो गई कि ये हसब देख करके रिश्ता किया जाता है, उसके लिहाज से भी पैगाम दिया जाता है। तो इसका भी लोग एतबार करते हैं, जब रिश्ता देखते हैं तो इसका भी एतबार करते हैं। तो हसब का ये दूसरा माना था, दूसरी राय थी जो लोगों ने पेश की है, मैंने आपको उसके बारे में पेश किया। तीसरी बात जो हसब की बात है, और यही सबसे सही इसके राय है, ओपिनियन, कि हसब असल में कहते हैं अरबी ज़बान में कि इंसान की जो, इसीलिए इसको नसब से भी जोड़ा जाता है, नसब का भी जो जोड़ा जाता है इससे, कि किसी भी शख्स के बाप दादा, उनका रख रखाव कैसा था, वो खानदानी शराफत, उर्दू में इसको कहा जाता है खानदानी शराफत। तो किसी शख्स की खानदानी शराफत देख करके, उसकी फैमिली के गुड मैनर्स को देख करके, बाप दादा जो उनका बड़ा मकाम था समाज में, उनकी बड़ी हैसियत थी, बड़े रख रखाव वाले लोग थे, बड़े अच्छे अखलाक और बड़े जो है अच्छी कदरों के साथ वो लोग जो है मशहूर थे समाज में, उनकी अपनी एक पहचान थी। उसके बाप, उसके दादा, लड़के के अगर जो है इंतखाब किया जा रहा है तो लड़के के बाप दादा को देख करके, उसकी खानदानी शराफत को देख करके, और लड़की का इंतखाब किया जा रहा है तो लड़की के भी उसकी खानदानी शराफत को देख करके, कि इसके बाप दादा जो है, जो भी घर में बहन भाई बाप दादा जितने भी हैं जो है बड़े अच्छे लोग हैं, इनका खानदान बड़ा शरीफ खानदान माना जाता है, समाज में बड़ा शरीफ खानदान माना जाता है, तो इसको देख करके भी निकाह का पैगाम दिया जाता है। आप मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूं तो शायद जो है आप बुरा नहीं समझेंगे, और मैं इसको क्लियर करता हूं। जैसे एक बात होती है, हाँ ये फलां की बेटी है, या वो रिश्ता फलां के बेटे से किस किया जा रहा है, या फलां के पोते से किया जा रहा है, उसके बाप, उसके दादा की अपनी एक पहचान है समाज में। मैं ये कुछ जो है माल और दौलत के लिहाज से नहीं कहना चाह रहा हूं, ये पहचान एक पहचान है उनके रख रखाव के लिहाज से, और समाज में उनकी इज्जत और एहतराम के लिहाज से, कि समाज में ये फैमिली, इसका अपना एक मकाम रहा है, इनकी इज्जत रही है, लोग इनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते रहे हैं। ये भी कभी होता है, हाँ ये फलां आलिम की बेटी है, वो फलां आलिम की बहन है, उससे जो है निकाह हुआ है, इनके घर में लोग जो है बड़े जो ये हैं हाफिज और आलिम लोग हैं। इस तरह की बातें आप सुनते रहते हैं ना, कि जो निकाह के जो है ताल्लुक से जब बातें होती रहती है, रिश्ते के ताल्लुक से बातें होती रहती है, तो ये सब बातें लोग करते रहते हैं। हालांकि आलिम और हाफिज होने से उनका नेक होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं समझने के लिए सिर्फ। तो उसके लिहाज से रिश्ता करने को लोग तरजीह देते हैं, ये प्रायोरिटी इसको भी जो है मिलती है, प्रायोरिटी जो है, तो ये जो चीज होती है, तो ये भी एक चीज है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसका हसब देख करके, लड़की का हसब देख करके, यानी लड़की की खानदानी शराफत जो है, जो उसके बाप दादाओं से ताल्लुक रखती है, उसकी फैमिली से ताल्लुक रखती है, उसको देख करके भी निकाह के लिए पैगाम दिया जाता है, या लड़के को जो है उसको देख करके जो है इस तरह का पैगाम दिया जाए। जहां लड़की का जिक्र है, औरत का जिक्र है, लेकिन सेम ये चीजें लड़के के बारे में भी हो सकती है, इसीलिए मैं दोनों लेकर के चल रहा हूं साथ में। अब मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ में आ गई, इसको हसब अरबी जबान में क्यों कहा जाता है।
حسب کیوں کہا جاتا ہے کہ اصل میں حسب کے معنی عربی زبان میں وہی حساب جو آپ اردو میں بھی بولتے رہتے ہیں نا، حساب جو ہے حساب، تو یہ جو حساب ہے جسے آپ میتھمیٹک کہتے ہیں، اصل عربی زبان میں حسب کہتے ہیں کسی چیز کا حساب لگانا، گنانا، کسی چیز کو گنانا۔ تو جاہلیت میں عربوں کا طریقہ یہ تھا، عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ عرب لوگ جب وہ اپنی خاندانی شرافت پر فخر کرتے تھے، ان کو پراؤڈ ہوتا تھا، جیسے ابھی آج کل بولتے ہیں نا، آئی ایم پراؤڈ آف یو او مائی سن، آئی ایم پراؤڈ آف یو او مائی فادر۔ تو یہ جو فخر کی بات جو ہوتی ہے نا، جب کسی چیز کے معاملے میں جو ہے لوگ کرتے ہیں، تو عرب لوگ اپنے باپ داداؤں پر جب فخر کرتے تھے تو ان کے کارنامے گناتے تھے، کارنامے ان کے گناتے تھے کہ میرے باپ نے یہ کیا، میرے دادا نے یہ کیا، جو ہے وہ گناتے تھے اس کو، اسی لیے اس کے لیے یہ حسبہ کا لفظ عربی میں استعمال کرتے تھے۔ اصل میں حساب جو ہے اس کے اندر وہی گننے گنانے کا معنی پایا جاتا ہے عربی زبان میں، تو اسی سے یہ لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک معنی تھا، اور یہی جو ہے یہاں پر وہی معنی مقصود بھی ہے کہ یعنی خاندانی شرافت کو دیکھ کر کے کسی کے گھر نکاح کا پیغام دیا جائے۔ عام طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ وہ خاندانی شرافت کی وجہ سے، اس ماحول میں پڑھنے بڑھنے کی وجہ سے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے اندر بھی وہ رکھ رکھاؤ آتا ہے، اور وہ رکھ رکھاؤ اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی لوگ ترجیح دیتے تھے، اور اس کو جو ہے سامنے رکھ کر کے بھی نکاح کا پیغام دیتے تھے، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ پہلے بھی یہ چیز تھی، آج بھی یہ چیز ہے، لیکن یہ بھی ایک پوائنٹ میری طرف سے نوٹ کر لیجئے گا آپ، کہ کوئی بھی شخص صرف خاندانی شرافت کو دیکھ کر کے ہرگز پیغام نہ دیجیے گا، بلکہ جس شخص کا پیغام ہے، چاہے عورت ہو یا جو ہے مرد، اگر لڑکی کا پیغام دے رہے ہیں لڑکے کو، تو لڑکے کی شرافت دیکھنا ضروری ہے۔ وہ خاندانی شرافت آج کے اس دور میں کافی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر لڑکی کا پیغام ہے تو لڑکی کے خود اپنے چال چلن کیسے ہیں وہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کسی عالم کی بیٹی ہو، کسی عالم کی بہن ہو، یا جو ہے دادا جو ہے اس کے عالم رہے ہوں، حافظ رہے ہوں، کچھ بھی رہے ہوں، لیکن خود لڑکی کیسی ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آج یہ چیز بہت مشہور ہے کہ ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہوتا ہے، اور شیطان کے گھر میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ ولی پیدا ہوتا ہے۔ صرف یہ دیکھ کر کے کہ نہیں لڑکی کے باپ بھائی یا جو ہے دادا وغیرہ یہ جو ہے یعنی خاندانی شرافت ان کے یہاں نہیں رہی ہے، ہم اس کا رشتہ جو ہے ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیا نہیں ہوتا کہ کوئی گھرانہ تو اچھا نہیں ہے، لیکن یہ لڑکی خود اپنے آپ میں بڑی اچھی طبیعت کی مالک ہے، اور بڑے اعلیٰ کیریکٹر کی مالک ہے، یہ اچھی قدریں ہیں اس کے پاس، جو ہے اچھے مینرز ہیں، گڈ مینرز ہیں۔ ایسا ہوتا ہے آج کل تو ہم بہت دیکھ رہے ہیں، پورا گھر پورا خاندان مختلف جو ہے برائیوں میں ہے، لیکن لڑکی اکیلی، اس کو اچھا کہیں ماحول مل گیا تو دینداری کے ماحول میں آ گئی، اور لڑکی کسی دیندار گھرانے میں جانا چاہتی ہے شادی کر کے، تو آخر اس لڑکی کا کیا قصور ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ اس کے باپ دادا یا اس کے گھر کی وہ خاندانی شرافت اس کی مشہور نہیں ہے، اور اس کے گھر والے اپنے اچھے اخلاق اور جو ہے گڈ مینر کے لحاظ سے مشہور نہیں ہے، تو اس کی قربانی اسے دینی پڑے گی کہ اس کا رشتہ کہیں اچھی جگہ نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، تو یہ بات نوٹ کیجیے گا۔ اپنی جگہ پر یہ صحیح ہے کہ خاندانی شرافت دیکھی جاتی ہے، دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ لڑکی فی نفس سے ہی بہت اچھی ہے اور بڑی اچھی اخلاق کی مالک ہے، اور اگرچہ کہ اس کی خاندانی شرافت اس پہ جو ہے
ये थोड़ा सा मसला है वहां पर, यहाँ लेकिन लड़की फी नफ्स ही बहुत अच्छे अखलाक की मालिक है, अच्छी कदरें हैं उसके पास, अच्छा रख रखाव है, दीनी मिजाज है, शिर्क व बिदअत से दूर है। तो ऐसी जगह पर पैगाम देने में कोई हरज नहीं, ऐसी लड़की से निकाह करने में कोई हरज नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि खानदानी शराफत नहीं है तो हम निकाह करने से दूर हो जाए, तो लड़की का इसमें क्या कसूर? ऐसे ही लड़के का भी मामला हो सकता है कि घर वाले चाहे उतने अच्छे ना हो, लेकिन ये हो सकता है कि लड़के को एक अच्छा माहौल मिल गया, और अच्छा माहौल मिलने की वजह से लड़का दीन की तरफ पलट आया है, बड़े अच्छे अखलाक का मालिक है, बड़ी अच्छी तबीयत का मालिक है लड़का। तो सिर्फ उसके बाप दादाओं को देख करके, उसके खानदान के लोगों को देख करके उस रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया जाए, ये अच्छा नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। तो खुद लड़के और लड़की की शराफत को देखना भी बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान में रहे। इसके मुकाबले में ऐसा भी होता है कि ऐसा मेरे पास असल में इस तरह के फतवे भी आए, इसीलिए मुझे तजुर्बा है इसका, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ कि ऐसा मसला पेश हुआ एक मरतबा कि लड़की का जो है भाई ऐसा है, लड़की का चचा जो है किसी दीनी मशहूर दीनी अदारे में पढ़ा हुआ, और अन्य मुख्तलिफ जो है वो जो खानदानी शराफत कहते हैं ना कि लड़की के जो है फला ये है, फला ये है, फला ये है, देख करके लड़की से रिश्ता कर, लेकिन लड़की के चाल चलन ठीक नहीं थे, खुद लड़की के चाल चलन ठीक नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आदमी जो है परेशान होता है। अब पूछ रहे हैं बार बार मेरे पास आकर के क्या करें, जो है ऐसा है मामला ये। तो इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि अपनी जगह पर लड़की के चाल चलन को देखना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ खानदानी शराफत देख करके पैगाम दे देना ये काफी नहीं, इसके उल्टे भी ऐसे ही, यानी लड़के के घर वाले तो बहुत अच्छे हैं लेकिन लड़का फी नफ्स ही कैसा। कितने जो है अच्छी फैमिली के लोग, जो आलिम के बेटे को भी आप देखेंगे कि वो जो है रास्ते से भटका हुआ मिलेगा। आपने बहुत सारे हमारे भाई लोग जो है बेंगलोर में देखे हुए हैं ये, और वो मुझसे कहते रहते हैं फला आलिम का बेटा हमने देखा तो उसका ये मामला और उसका ये मामला। तो सिर्फ इस वजह से कि वो किसी आलिम का बेटा है या किसी आलिम का पोता है, खानदानी शराफत को देख करके आप समझें कि वो खुद भी शरीफ होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है उसके अखलाक अच्छे ना, उसकी जो है उसको जो माहौल मिला या जिस माहौल में वो पला बढ़ा है, उसके जो साथी थे, उसके कंपेनियंस, तो जिस तरह की कंपनी थी उसकी, उस लिहाज से वो बिगड़ा हुआ शख्स है। तो हमने आपसे कहा कि वली के घर में शैतान भी पैदा होते हैं, और जब ये लोग बिगड़ते हैं तो शैतान भी इनसे पनाह मांगता है, याद रखिएगा। इसलिए जरूरी ये होता है कि जब निकाह के लिए पैगाम दे रहे हैं तो खुद लड़की की शराफत को देखना, लड़के की शराफत को देखना, ये ज्यादा बेहतर होता है। उनका जो है रख रखाव और वो पोलाइट है या नहीं है, ये सब चीजें जो है देखना, ये बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात खानदानी शराफत को नजरअंदाज कर दीजिए, कोई बात नहीं है। अगर लड़का अच्छा है तो इंशाअल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बीवी की देखभाल करेगा। अगर लड़की अच्छी है तो बहुत अच्छी बीवी बन करके वो अपने शौहर के साथ रह सकती है। ये सब चीजें हैं, ये आपके सामने हमने हसब को लेकर के पेश किया। तो चार चीजें जो हदीस में थी, एक तो माल का जिक्र आपके सामने आ गया, अब दूसरा हसब का भी जिक्र आ गया। अब तीसरी चीज उसमें क्या है, वह ले जमालिहा, लड़की से निकाह उसकी खूबसूरती को देख करके किया जाता है। तो ये भी जो चीजें देखी जाती है उसमें से एक चीज क्या है, लड़की की अपनी जो है खूबसूरती या लड़के की खूबसूरती, लड़के का स्मार्टनेस जो है, और बहुत ही स्मार्ट लड़का है वो देख करके जो तो ये भी चीजें हैं आज के जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि खूबसूरती देख करके निकाह के लिए पैगाम दे। अब ये खूबसूरती देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, हो सकता है कि आप सवाल करें। अब
क्या हदीस का मतलब ये है कि खूबसूरती देखी ही नहीं जा सकती और खूबसूरती देखना ही नहीं है? हमारे बहुत सारे भाई ये समझते हैं, हमारी बहुत सारी बहनें ये समझती हैं, ओ बस दीनदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दीनदार फजफर बेजाती दीन तरीबत यदा, किसी हदीस को सामने रख करके कि दीनदारी को जो है कर, बस वो काफी है, उसके अलावा शक्ल चाहे जैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये याद रखिए, हदीस का मतलब ये नहीं है, हरगिज हरगिज ये नहीं। तो एक सबब जो है किसी लड़की को पैगाम देने में, एक ये भी है कि उसकी खूबसूरती को देख करके पैगाम दिया जाता है, या लड़के की खूबसूरती को देख करके उसे पैगाम दिया जाता है। और इसका ख्याल करना है या नहीं करना है, हदीस में इसका मतलब ये नहीं है कि जो है हमको इसका ख्याल करना ही नहीं है। और वो हदीस जो आम तरीके से हमारे खुतबा बयान करते हैं इस सिलसिले में, और जो हदीस हमने आपके सामने जिक्र की थी और बताया था कि वो इंतहाई ज़ईफ हदीस है कि ला तज़व्वजुन निसा लिहुस्निहिन्ना फअसा हुस्नुहुन्ना युर्दीहिन्ना, कि औरतों से निकाह उनका हुस्न देख करके ना करो, उनके हुस्न की वजह से निकाह मत करो कि उनका हुस्न उनको हलाक कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये हदीस बिल्कुल ज़ईफ है। ये हमारे खुतबा ने बयान किया, जबकि उनका अपना हाल ये होता है कि जब उनको लड़की की तलाश करनी होती है तो चाहते ये हैं कि कहीं जन्नत से हूर आए, और जब दूसरों के लिए मसाइल बयान करने होते हैं तब जो है कुछ इस अंदाज से पेश कर देते हैं। तो मुकर्रिरीन का बड़ा मसला होता है, मुकर्रिरीन से कभी दीन नहीं सीखा जा सकता, ये याद रख लीजिएगा, और तकरीरों से कभी दीन नहीं सीखा जा सकता। जो लोग तकरीरों से दीन सीखते हैं हमेशा जो है गलती पर होते हैं। तकरीरों में लोग ऐसे ही बयान कर देते हैं, दीन असल किताब व सुन्नत से सीखा जाता है, और जो तफसीर और जो हदीसों की जो शरह है, सही शरह उसकी की जाए, उससे दीन सीखा जाता है। दीन तकरीरों से नहीं सीखा है। तो तकरीर करने वाले तो वो सिर्फ जोश में आकर के कुछ ऐसा बोल जाते हैं, ऐसी बातें कह जाते हैं कि जो मतलूब भी नहीं रहता है हदीस में, वो बड़े मुबालगे से भी काम लेते हैं। असल में वो तो सामने वालों को खुश करना होता है, उसके लिहाज से वो उसी अंदाज से पेश भी करते हैं। याद रखिएगा, एक मशहूर बहुत वाक़या है इस सिलसिले में, वो भी जो है लोग लतीफ़े के तौर पर पेश करते हैं। मैं आपके सामने वो पेश कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो है आपके मिजाज को इसमें और शगुफ्ता करने के लिए, कि एक आलिम साहब जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाज़ो पर एक मरतबा उनको टॉपिक मिला ये तकरीर करने का। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी उसको जो है बयान किया, बड़े जोश के साथ बयान किया कि कई कई महीने गुजर जाते, चूल्हे भी नहीं जलते थे, खजूर खा करके रह जाते थे, और कभी भी आपको छने हुए आटे की रोटी खाना नसीब नहीं। रोटी जो खाते थे तो वैसे ही जो आटा जो है घरों में चक्कियाँ होती थी, उसी चक्की पर जो है जौ या जो है गेहूं उसे पीस करके रोटी बनाई गई। गेहूं तो कम था, जौ ही ज्यादा होता था, तो जौ की जो है वो आटा जो है वैसे ही निकाल करके बगैर छाने हुए वैसे ही रोटी बना करके वही खा ली। बड़ी जिंदगी इस अंदाज की आपकी जिंदगी थी। तो जब वो बड़े जोश में आकर के बयान किए तो लोगों ने ये समझा कि आलिम साहब भी वैसे ही होंगे। तो उनके सामने जो खाना पेश करते थे वही दाल रोटी, बहुत मामूली सा जो खाना होता है ना घरों का, वही पेश करते थे। एक दिन खाया, तंग आ गए, उसके बाद जो है कहने लगे कि पूछा किसी ने कि आज तारीख कितनी है, तो कहा कि आज जो है दाल की, मुझे तो तारीख का पता नहीं लेकिन आज दाल की 3 तारीख है, यानी 3 दिन से लगातार मुझे दाल ही मिल रही है जो है खाने। तो लोगों ने कहा कि हमने तो समझा आपके बारे में ऐसा, हम तो बहुत इंतजाम किए थे आपके लिए खाने का, अच्छा जो है इंतजाम किए थे, लेकिन हम समझे कि शायद जो है जैसा आपने तकरीर में कहा वैसा ही आप भी पसंद करते होंगे, उसके लिए हमने आपको कहा। नहीं, वो तो हम दूसरों के लिए कहते हैं, हमारा मामला कुछ जो है अलग। तो ये मुकर्रिरीन का मसला ये होता है, कभी भी उनकी तकरीरों से दीन नहीं सीखा जा सकता। याद रखिए, ये जमाल ये भी
उन असबाब में से एक सबब है जिसको देख करके रिश्ता किया जाता है या पैगाम दिया जाता है, और शरीयत में इसका एतबार है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई एतबार ही नहीं है। अगर इस जमाल का एतबार नहीं होता तो फिर हमारी शरीयत में ये हुक्म कहाँ से आता कि शादी से पहले लड़की को देखने की इजाजत है, लड़के को देखने की इजाजत है या नहीं है? बोलिए। लड़के को देखने की इजाजत है, लड़की के देखने के बारे में तो हदीसों में आया हुआ है, और उसी पर कयास करके आले इल्म लिखते हैं, ये फुक़हा लिखते हैं कि लड़की लड़के को भी देख सकती है। ये जो शादी से पहले देखने की इजाजत है, हालांकि वो अजनबी है, उसके लिए देखना हराम है उसकी तरफ, लेकिन शादी से पहले, निकाह से पहले देखने को जायज करार दिया गया। जिसको आप पैगाम देते हैं उसको देख सकते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिदायत फरमाई है कि देख लो ताकि ये रिश्ता बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि बाद में देखने के बाद तुमको पसंद ही ना आए। ये बात कही है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो देखने जाएंगे तो क्या देखेंगे वहां पर? उसकी पेशानी पर जो है दीनदार है, मुत्तकी और परहेजगार है, ये लिखा है या नहीं, ये देखने जाएंगे। क्या चीज देखता है आदमी जब देखता है तो उसका ज़ाहिरी हुस्न ही देखता है, और यही देखना वहां मुराद है। तो इसका मतलब ये कि ये चीज भी शरीयत में है कि ये चीज देखी जाती है और देखने में कोई हरज नहीं है। ये अलग बात है कि जमाल का जो डिफिनेशन है, जमाल अरबी में जो कहते हैं ब्यूटीफुल, खूबसूरती हम उर्दू में कहते हैं, इसके डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है, और इसी वजह से देखने की इजाजत भी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो है खूबसूरती का मतलब ये है कि जो है वो मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स हो, तभी उसको पैगाम दिया जा सकता है। ये मतलब नहीं है इसका कि उसकी खूबसूरती को देख करके पैगाम दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि खूबसूरती का मतलब ये है कि वो मिस वर्ल्ड हो तभी जो है उसको पैगाम दिया जा सकता है। ये भी मतलब नहीं। जन्नत की हूर हो तभी जो है उसको पैगाम दिया जा सकता है, वरना नहीं दिया जा सकता। ये मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि इस जमाल से मुराद वो जमाल है। इसकी मैंने कहा कि जमाल का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। इस जमाल से मुराद वो जमाल है जो जमाल ये पैगाम देने वाला शख्स अगर लड़का है तो वो अपनी बीवी के अंदर वो जमाल वो चाहता है, वो खूबसूरती वो चाहता है। या लड़की है तो अपने शौहर में वो खूबसूरती वो चाहती है, वो जमाल वो चाहती है, उस जमाल। इससे ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ही खूबसूरत लड़का है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उसके हुस्न के सामने उनका हुस्न मात पड़ जाए, और लड़की है तो वो मिस वर्ल्ड हो, तो ऐसा कुछ जो है नहीं है। और अलग अलग लोगों की निगाह होती है। मेरी निगाह में खूबसूरती जो मुझे जचती है वो कुछ अलग हो सकती है, और दूसरे की निगाह की खूबसूरती थोड़ी अलग भी हो सकती है। इसीलिए देखने की बात कही, इसीलिए दूसरे के देखने को काफी नहीं करार दिया। वरना ये भी हो सकता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि ठीक है, अपनी माँ से कहो जाकर के देख ले लड़की को, अगर माँ को पसंद है, माँ ने कहा खूबसूरत है तो काफी है, बहन ने कहा खूबसूरत है तो काफी है। नहीं, ये नहीं कहा गया कि दूसरे लोग देख लेंगे तो काफी है। जैसा कि हमारे स्कूल के बाद जगहों पे यही रिवाज पाया जाता है कि लड़के को लड़की नहीं दिखाते हैं, बकिया घर वाले सब देख लेंगे जाकर। तो जिसको शादी करनी है उसको ना दिखाना चाहिए। जो खूबसूरती वो चाहता है, उसकी निगाह की जो खूबसूरती है, वो जो खूबसूरती चाहता है वो खूबसूरती उसके लिहाज से वो पैगाम देगा। इसको कहते हैं कबूल सूरत होना।
इस खूबसूरती के लिए उसका गोरा होना भी कोई जरूरी नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। जो है गोरा होना एक खूबसूरती की एक अलामत अपनी जगह पर जरूर है, लेकिन सिर्फ जो है गोरा होना ही खूबसूरती नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि रंग अगर गोरा नहीं है तो लड़की खूबसूरत नहीं मानी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है मामला। यही मामला लड़के का भी है। खूबसूरती में बहुत सी चीजें देखी जाती है, वो डेफिनेशन जो हमने आपसे कहा। एक मर्तबा जब मैं जामिया इस्लामिया में पढ़ता था तो मेरे अंदर भी थोड़ी इस तरह की चीजें होती थी कि थोड़ा सा मजाक का अंदाज जो है कभी कभी अपनाता था। तो मेरे कमरे में एक जो है अफ्रीकन कंट्रीज के, उस जमाने में जामिया इस्लामिया का ये जो है मदीने में, मदीना यूनिवर्सिटी में का निज़ाम यही था कि कमरों में अलग अलग जो है कंट्री के लोग जो है, अलग अलग नेशनलिटी के लोग रखे जाते थे। एक ही नेशनलिटी के दो स्टूडेंट एक कमरे में नहीं रखे जाते थे। तो मेरे साथ जो कमरे में थे वो जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज के थे। तो मैं ऐसे बातों बातों में उनसे काफी मजाक भी किया करता था। एक मरतबा जो पूछा उससे कि ये बताओ कि आप लोगों की यहाँ क्या खूबसूरती देखी जाती है। जो है ये होता है ना कि निकाह के लिए जो खूबसूरती देखी जाती है, जो है पैगाम देने के लिए लड़की को देखते हैं या लड़की लड़के को देखती है, तो ये आपकी यहाँ फिर खूबसूरती का मेयार क्या होता है? आपकी यहाँ क्या देख करके जो है तय करते हैं कि ये खूबसूरत है और ये खूबसूरत नहीं है? तो कबूल करने या रिजेक्ट करने के लिए वो आपके यहाँ जो है क्या मेयार होता है? तो वह नहीं है, सबके यहाँ होता है वैसे ही होता है। तो ये एक मसला है। जाहिर सी बात है कि वो खूबसूरती जो जो है यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिकन कंट्रीज में देखी जाती हो, और जो खूबसूरती उनके जहनों में होगी वो अफ्रीकन कंट्रीज में तो नहीं होगी। उनके यहाँ वो खूबसूरती के निगाह जो है वो नहीं हो सकती। हमारे अपने इस मुल्क में भी ये मामला है कि हमारे बहुत से लोग जो है, यानी उनके यहाँ खूबसूरती सिर्फ ये नहीं है कि जो है लड़की गोरी हो तो ही उसको खूबसूरत जो है कहेंगे। रंग थोड़ा जो है उतना गोरा नहीं है तो घर वाले कभी रिजेक्ट करके आ जाते हैं। हालांकि लड़के को दिखाएं तो हो सकता है कि लड़के का अपना मामला ऐसा हो कि लड़का जो है लड़की के चेहरे की जो खूबसूरती है वो जो है उसकी कशिश जो है वही काफी समझता। नाक नक्शा अच्छा है और देखने में अच्छी भली लग रही है तो काफी है उसके लिए। हो सकता है लड़के की निगाह का यही मामला। इसको मलाहत कहते हैं अरबी जबान में। मलाहत जो है उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मलाहत का, यानी उसकी अपने चेहरे का जो है जो रंग है, उसका जिस्म का जो रंग है उतना गोरा तो नहीं है लेकिन फिर भी वो देखने में अच्छी लगती है, भली लगती है। तो लड़के को दिखाना चाहिए लड़की की निगाह के लिहाज, लड़के की निगाह के लिहाज से। मैं इस सिलसिले में जमाल के इस लफ्ज के साथ एक चीज और भी जोड़ देता हूँ आपके लिए। आपने जो है लैला मजनू का वाक़या तो बहुत सुना, हमारे इस मुल्क में तो बहुत मशहूर है और दूसरी जगहों पर भी। ये लैला मजनू का जो किस्सा है, असल में जो कहानी है, ये अरब जो है दुनिया के एक इलाके से इसका ताल्लुक है। यानी बाकायदा मजनू का नाम कैस था जो है, और इन दोनों की कहानी काफी मशहूर रही है। फिर वो पूरी दुनिया में हर जगह पर हर जबान में उसका तर्जमा किया गया और उस पर फिल्में बनी और मुख्तलिफ चीजें जो है। तो असल जो ये कहानी थी ये जो है अरब कंट्रीज में, बल्कि अरब कंट्रीज के ऊपर हम सऊदिया जो अभी जो मुल्क जो है, ये सऊदी किंगडम जो है उसी का एरिया है। ये ओनेजा का इलाका, जो भी वहां गए हैं जानते होंगे, कसीम का एक एरिया है ये, ओनेजा कहते हैं ना। ओनेजा के इलाके का ही जो है ये वाकया है, ये कैस का वाकया, जिसको बाद में मजनू कहा गया। मजनू तो उसका लक़ब था, उसका नाम कैस था। तो मजनू जिसे कहा जाता है, कैस जिसका नाम था, जो लैला पर मरता था, लैला कोई गोरी लड़की नहीं थी। ये चीज है। बल्कि जो है इसके बारे में ये भी है जो लिखा गया है बाकायदा फारसी जबान। मैंने कहा कि दुनिया की हर जबान में फिर उसका तर्जमा हुआ। फारसी जबान में तो यहां तक मशहूर है कि लैला रा बनजरे मजनू बायत दीद।
اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلا کو مجنو کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. آپ دیکھیں گے تو آپ کو خوبصورت نہیں لگے گی وہ، لیکن مجنو کی جو نگاہ تھی اس کی نگاہ میں وہ اس سے اتنا جچی کہ اس پر وہ قربان ہو گیا، اس پر فدا ہو گیا، اور اسی کا نام لے کر کے وہ مجنو اور دیوانہ ہوا. تو یہ ایک چیز ہے، اس کو نوٹ کریے گا کہ یعنی کیونکہ یہ سوال اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں کہ اگر خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کرنا ہے تو پھر جو لڑکی خوبصورت نہیں ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا تو کہیں نکاح ہی نہیں ہوگا. لڑکا اگر خوبصورت نہیں ہے تو اس کا تو کہیں نکاح ہی نہیں ہوگا. ویسے تو لڑکے کے بارے میں عام طریقے سے یہ بات لوگ نہیں کہتے کہ لڑکا کیسا بھی ہو اس کو تو لڑکی مل ہی جاتی ہے، ایسے ہی جو ہے لوگوں کے ذہن میں. لیکن لڑکی اگر خوبصورت نہیں ہے تو اس کو پیغام نہیں آتا ہے، یا لوگ جو ہے پیغام نہیں دیتے. یہ اصل جو ہے کمی کہاں سے ہے پتہ ہے؟ اس لیے کہ رشتہ تلاش کرنے کے لیے ہمارے اس سماج میں کون جاتے ہیں؟ لڑکے کے گھر والیاں جاتی ہیں، یعنی اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی پھوپھیاں، اس کے جو ہے چاچیاں اور ماما جو ہے مامیاں، یہ جتنے بھی رشتے دار ہوتے ہیں نا یہ جاتی ہے دیکھنے کے لیے. اور جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ خود ان کی اپنی خوبصورتی کوئی خاص نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اپنے گھر کے لیے بہو ڈھونڈنے جاتی ہیں، بھابھی ڈھونڈنے جاتی ہیں، تب یہ چاہتی یہ ہے کہ جو ہے جنت کی کوئی حور مل جائے. غلطی اصل یہاں ہوتی ہے اور یہ پریشانی کی بات ہوتی ہے. ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکے کو اگر لڑکے کو دکھایا جائے، لڑکے کو جو ہے پسند ہے تو ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لڑکے ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کے یہاں خوبصورتی، جو ان کی نگاہ میں خوبصورتی ہوتی ہے، وہ ان کا اپنا ایک خاص اس کا انداز ہوتا ہے. اس کے لحاظ سے اس طرح کے چہرے ان کو اچھے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی پسند بھی الگ الگ بنائی ہے. تو ہم کو یہ سوچ کے نہیں بیٹھنا ہے کہ لڑکی کا کہیں نکاح ہی نہیں ہوگا، خوبصورتی نہیں ہے. نہیں، ہم نے سمجھا نہیں ہے اصل میں اس مسئلے کو صحیح سے. اللہ تعالیٰ نے جیسے چہروں کو الگ الگ بنایا ہے، انسان کو الگ الگ بنایا ہے، اسی طریقے سے اس کی آنکھ اور اس کی آنکھ کی پسندیدگی کو الگ الگ بنایا ہے. ایک ہی طرح کی شکل ہر انسان کو اچھی نہیں لگتی ہے. ہاں، کچھ ایسی خوبصورتی ہے دنیا میں جو کوئی بھی دیکھے تو اس کو خوبصورت ہی کہے گا. یوسف علیہ السلام کا حسن اپنی جگہ پر ہے. تو ایسی بہت سی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو بہت خوبصورت ہوتی ہے، تو کوئی بھی جو ہے اسے دیکھے گا تو اسے پسند ہی کرے گا. وہ ایسی خوبصورتی ہوتی ہے جو ہر ایک کی نگاہ کو جچتی ہے. یہ ایسا ہوتا ہے. اور جو ہے اس طرح کی لڑکیاں کم ہوتی ہیں اور اس طرح کی خوبصورتی بھی کم ہوتی ہے. لیکن جو عام ہے بات، جنرل بات ہے، وہ یہ ہے کہ بعض جو ہے لڑکوں کو قبول صورت، یعنی بس شکل ایسی ہے جو انہیں پسند آ جائے، ان کے ساتھ رہنے میں ان کو کوئی دقت پریشانی کی بات نہیں ہے، اسی کو وہ کافی سمجھتے ہیں اور اس لحاظ سے وہ پسند بھی کر لیں گے رشتے کو. دوسری اور چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ بہت دینداری ہے اور بہت اچھا ماحول ہے ان کا، ان کی بڑی اچھی تعلیم ہے اور بھی بہت سی جو ہے خوبیاں ہیں جو ہے، اور صورت بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں. تو جو ہے رشتہ قبول کر لے سکتا ہے آدمی. تو اس لیے لڑکے کو دکھانا ہے اور لڑکی کو دکھانا ہے لڑکے کو. یہ جو لڑکی اور لڑکے کے گھر والے خود سے جو ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں، قبول کرتے رہتے ہیں، تو یہ غیر مناسب ہے. ریجیکٹ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے میرے بھائی. ہمیں بھی ان تمام لڑکیوں سے ہمدردی ہے جن کے نکاح کی عمر ہے اور ان کا نکاح ہونا چاہیے. سب سے ہمدردی ہے. اور اسی لیے ہم یہ بات کہتے بھی ہیں کہ اس سلسلے میں لڑکی کو چاہیے کہ اس کو جو ہے لڑکا دکھایا جائے، لڑکے کو چاہیے کہ اسے لڑکی دکھایا جائے. اور لڑکا اگر پسند کر لیا ہے تو پھر گھر والے مختلف کیڑے نکال کر کے ایسا ہے ویسا ہے، یہ معاملہ وہ معاملہ، اور اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو یہ غلط چیز ہے اور پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بات تھی جو ہے حسن کی بات تھی، جمال کی بات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. جو تو خلاصہ کیا ہوا اس کا، پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے
کہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے اور شریعت میں بھی اس کو منع نہیں کیا گیا ہے کہ خوبصورتی دیکھ کر کے شادی نہیں کر سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو حدیثیں اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے وہ انتہائی ضعیف حدیثیں ہیں کہ اگر خوبصورتی ہے تو اسے اپنی خوبصورتی کا گھمنڈ ہوگا اور ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر بھی جو ہم نے مال کی بات کہی تھی نا، یہاں پر بھی ہم وہی بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ کتنی لڑکیاں ہیں جو بڑی خوبصورت بھی تھیں اور ان سے نکاح ہوا اور بڑی اچھی زندگی بسر ہو رہی، اور کبھی بھی ان لڑکیوں میں اپنے حسن کو لے کر کے کسی طرح کا کوئی فخر ہو یا اس کی وجہ سے اپنے شوہر کو کمتر سمجھے یا اپنے شوہر کے گھر والوں کو کم درجے کا سمجھے، اپنے حسن کا اسے بڑا گھمنڈ اور فخر ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، وہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے اصل۔ تو خوبصورتی کو دیکھ کر کے ریجیکٹ کر دیا کہ اتنی خوبصورت ہے تو کبھی میرا خیال نہیں کرے گی، مجھے خاطر میں نہیں لائے گی کہ بیوی تو اتنی خوبصورت ہے اور میں اتنا اچھا نہیں ہوں، تو کبھی انسان کس میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہ جو ہے ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ اتنی اچھی ہے تو میرے ساتھ اچھی بیوی بن کر کے نہیں رہے۔ نہیں، یہ غلط تصور ہے۔ اس کی طبیعت کو معلوم کرو، اس کے نیچر کو معلوم کرو، اگر اچھی طبیعت کی مالک ہے تو آپ کے ساتھ اچھی رہے گی، کبھی کوئی معاملہ نہیں پیش آئے گا۔ یہ طبیعت ہوتی ہے انسان کی، ہم نے آپ سے کہا اچھی طبیعت کے جو مالک ہوتے ہیں وہ اچھے بن کر کے ہی رہتے ہیں۔ جب لڑکی نے قبول کر لیا یہ اور نکاح ہو گیا ہے، نکاح کے لیے وہ تیار ہے، لڑکی لڑکا تیار ہے، وہ چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، جب وہ تیار ہے اس کے لیے تو صرف خوبصورتی کی وجہ سے اسے ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی معاملہ الٹے بھی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے کہ لڑکا بڑا خوبصورت ہوتا ہے تو لڑکی جو ہے اب اتنا خوبصورت ہے، اب پتہ نہیں مجھے عزت دے گا کہ نہیں دے گا، اور ذرا اتنا خوبصورت نہ ہو، بس کام چلنے کے لائق ہو، چلے بل جسے کہتے ہیں آج کل ہم لوگ اپنی زبان میں، لڑکا تو کافی ہے اور تھوڑا سا کمتر رہے گا حسن کے لحاظ سے، جمال کے لحاظ سے، تو میرا زیادہ خیال کرے گا، میں خوبصورت ہوں، یہ سوچ کر کے بعض لڑکیاں جو ہے اس طرح کا انتخاب کرتی ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آپ سے حسن میں بہت دب کر کے ہے میری بہنوں، آپ اس وجہ سے ان کا انتخاب اگر کر لیں اور اس کے لیے راضی ہو جائیں، صرف یہ سوچ کر کے کہ وہ میرا زیادہ خیال کرے گا کہ میں اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی طبیعت کو معلوم کیجیے، دیکھیے اس کی ظاہری شکل کو اور ساتھ میں اس کی طبیعت کو معلوم کیجیے۔ اگر اچھی طبیعت کا مالک ہے تو چاہے وہ یوسف علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ لڑکا جو ہے حسن میں بہت ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، تب بھی جو ہے آپ کا پورا پورا خیال کرے گا۔ یہی حال میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں کہ لڑکی چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر اس کی طبیعت اچھی ہے، اچھی طبیعت کی مالک ہے، تو یاد رکھیے وہ آپ کا خیال رکھے گی، وہ کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرے گی۔ گھمنڈی اگر ہے تو معلوم ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں معلوم چھپتی نہیں، یہ چیزیں جو ہے آپ جو ہے رشتہ مکمل کرنے سے پہلے معلوم کر لیجئے کہ لڑکی کوئی گھمنڈی تو نہیں ہے نا، اسے کچھ اپنے حسن کا غیر معمولی غرور تو نہیں ہے نا۔ ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں، میں انکار نہیں کرتا اس کا، ایسا سماج میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بعض لڑکیوں کو ان کے اپنے حسن کا بڑا غرور ہوتا ہے، تو اس کا انتخاب نہیں کر سکتے آپ، چاہے مال کا غرور ہو، چاہے حسن کا غرور ہو، چاہے جو ہے دینداری کا غرور ہو۔ یاد رکھیے گا، دینداری کے بارے میں بات یہ آئے گی، ابھی دینداری کی بات نہیں آئی۔ بعض جو ہے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو اپنی دینداری کا بھی بڑا غرور ہوتا ہے، غرور تو چاہے جو بھی ہو وہ اچھا نہیں ہے۔ ایسی کسی لڑکی کا انتخاب مت کیجیے، چاہے اسے اپنے خاندانی شرافت کا غرور ہو کہ میں فلاں کے خاندان سے ہوں، یا اپنے حسن کا غرور ہو، یا اپنے مال کا غرور ہو، یا اپنی دینداری کا غرور ہو،
जिसके दिल में गुरूर बसता है वो कभी भी अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकती, या जिस लड़के के दिल में गुरूर है वो कभी अच्छा शौहर नहीं बन सकता। इस चीज को देखिए, ये देखने की जो है चीज होती है। अब एक आखिरी बात रह गई है, दीनदारी वाली बात। तो इंशाअल्लाह इसके लिए आपको एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते आपके सामने वो बात और भी कुछ जो है सिफात है, ये चार ही सिर्फ नहीं, ये सारी सिफात आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करेंगे। वदूद और वलूद की बात जो हदीसों में आई हुई है, और उसके ताल्लुक से भी बात आपके सामने, और भी दूसरी जो है सिफात है आज के दौर के लिहाज से, वो भी इंशाअल्लाह हम आपके सामने पेश करेंगे। ऐसे ही जो है थोड़ा थोड़ा करके पेश करते रहेंगे, हर चीज आपके सामने इंशाअल्लाह आएगी। आज का दर्स इसी पर खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता